Good afternoon, students. Today we are going to start the most fascinating branch of science, and that is biology. In biology, what you know up to now, I'll not teach like this. I'll teach biology in a different way. Okay? So first you write, what is biology? Can you tell me what is biology? बोलो biology क्या है बोलो? लिखो biology is about all aspects of life. Biology is about all aspects of living organisms. Science deals with the studies of plants and animals. Yes, Lakshmi, very good. The biology, all aspects of study of it is the branch of science, study of all aspects of living organisms. What are the living organisms? What you are saying? Tell me. What are Plants and animals and the microorganisms. Yes, you are talking about plants, you are talking about animals, and you are talking about microbes also. Okay. Can I say biology in another aspects? Like, can I say biology deals with study of autotrophs and heterotrophs? Can I lock it like this? Yes, biology is the study of autotrophs, heterotrophs. In heterotrophs also I can say subtrophs, parasites, and other aspects. Second, biology, when you are talking all aspects of biology, we are talking about structural aspects, we are talking about functional aspects, we are talking about biochemical aspects, correct or not? Biochemical aspects. And you are talking about reproduction. Otherwise, life will not be there. The reproduction will be bio के साथ connected है. And biology में और क्या होता है? We are talking about characters of living organisms. ये सब biology के अंदर होगा. The characters of living organisms. Life को define करना इतना easy नहीं होता. We have to talk about characters by which we can separate the characters. एंड रिप्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग और क्या जेनेटिक्स के बारे में भी बात करते हैं कि नहीं जेनेटिक्स हाउ हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हाउ इट इज गोइंग ऑन द जेनेटिक्स आल्सो another aspect of biology. We are talking about molecular biology or not, biology at molecular levels, DNA and RNA. तो ये स्पेशलाइज्ड बायोलॉजी हो रहा है. बायोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता स्पेशलाइज्ड हो रहा है. ठीक है, तो ये पार्ट आपका हो गया. ठीक है, तो सेकंड व्हाइट पेज में जाते हैं. तो वहां पर हम आपको ये पहले लिख लो, थोड़ा लिख लिया. तो कैन आई से बायोलॉजी के अंदर क्या क्या होगा? देखो बायोलॉजी के अंदर आपको जूलॉजी मालूम है? सर आई हैव क्वेश्चंस. हाँ, बायोलॉजी, वेट जस्ट 1 मिनट. बायोलॉजी के अंदर फाइटोलॉजी है कि नहीं? फाइटोलॉजी लक्ष्मी, फाइटोलॉजी भी है. बायोलॉजी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी है कि नहीं लक्ष्मी? माइक्रोबायोलॉजी भी है. तो आज से हम अगर बॉटनी पढ़ाएंगे तभी हम बोलेंगे फाइटोलॉजी, और जब जूलॉजी पढ़ाएंगे हम बोलेंगे जूलॉजी, बिकॉज इट डील्स विद एनिमल्स. सबसे कौन सा ब्रांच पहले डेवलप हुआ था? बोलो, सबसे कौन सा ब्रांच डेवलप हुआ था? बॉटनी शुरू हुआ था या जूलॉजी शुरू हुआ था? बोलो. पहले बायोलॉजी का जो फादर थे, जूलॉजी का फादर भी वही थे. तो इसलिए पहले जूलॉजी शुरू हुआ, जूलॉजी के साथ बायोलॉजी शुरू हुआ. फिर आहिस्ते आहिस्ते उनका जो स्टूडेंट थे, उनका नाम थियोफास्टस था. ही initiated this plant science branch called phytology. Now, what is your question, Pucho? Sir, what is the most applicable aspects that we can divide the plants or animals or microbiology, microorganisms? Yes, most important aspect between animals and plants is cell wall, presence and absence of
सेल वॉल। किसके पास सेल वॉल होता है? प्लांट के पास होता है, एनिमल्स के पास नहीं होता है। और माइक्रोबायोलॉजी अगर होगा तो माइक्रोबायोलॉजी के पास तो सेल वॉल भी होता है, किसी किसी के पास सेल वॉल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग को न्यूक्लियस, ऑटोट्रोपिक, न्यूट्रिशन, बहुत कुछ पॉइंट्स में माइक्रोबायोलॉजी डिवाइड कर, इट्स ए वास्ट एरिया। इसमें हम लोग प्लांट रिलेटेड माइक्रोब्स है, एनिमल रिलेटेड माइक्रोब्स है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, तो इसे डाइवर्स ग्रुप। तो माइक्रोबायोलॉजी जैसे बायोलॉजी का छोटा रूप है, स्वरूप है। ओके, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, अभी तो शुरू हुआ है ना। ओके, ये पूरा चलेगा। तो लक्ष्मी, कैन यू टेल मी बायोलॉजिकल हायरार्की फर्स्ट एंड देन विल एंटर इनटू, हम लोग फिर किसके अंदर जाएंगे? जो आपने लिविंग कैरेक्टर्स बोला उसके अंदर जाएंगे। तो कैन यू टेल मी बायोलॉजिकल हायरार्की कहाँ से शुरू होता है? पहले कहाँ से होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, Yes, sir. उसके बाद एटम्स, Again. एटम के बाद मॉलिक्यूल, Molecules. मॉलिक्यूल के बाद बोलो, मॉलिक्यूल के बाद क्या हो गया? अंजू, हु आर देयर? थोड़ा एक बार नाम मैं ले लेता हूँ। लक्ष्मी, MS, अंजू, राजीव लोचन, सौभाग्य, शुभम। ओके, आप लोग थोड़ा मेरे से कनेक्टेड रहिए, जो मैं पूछ रहा हूँ उसको आप सुनते रहिए तो आपको इजी होगा, और थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए। यू थिंक दैट दिस इज योर ऑलरेडी क्लास ऑलरेडी स्टार्टेड। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उसके बाद ऑर्गेनेल्स होता है कि नहीं? Yes, sir. ऑर्गेनेल्स के बाद सेल होता है, ये अभी बोलना पड़ेगा आपको। सेल के बाद क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल का नाम क्या है? टिश्यू होता है। टिश्यू के बाद क्या होता है? Organ system. टिश्यू सिस्टम भी बोल पाएंगे? हाँ, गुड, टिश्यू सिस्टम होता है। फिर टिश्यू सिस्टम के बाद क्या होता है? ऑर्गन होता है। Organ. फिर ऑर्गन के बाद क्या होता है? ऑर्गन Organ सिस्टम system. होता है। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या होता है? वेरी गुड, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या होता है? Organelles. ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ और इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? Population. पॉपुलेशन। वेरी गुड, पॉपुलेशन के बाद ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे? ये तो मोनोस्पेसिफिक है, एक ही स्पीसीज का है। ओके, इस रूम में मैं अकेला हूँ या इस रूम में और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स है? और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे कि नहीं? माइक्रोस्पाइकोस भी होंगे। तो इसके लिए आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी। Community. कम्युनिटी मोनोस्पेसिफिक होता है या पॉलीस्पेसिफिक होता है? Polyspecific. वेरी गुड, पॉलीस्पेसिफिक। ओके, कम्युनिटी सब ठीक से लिखा। उसके बाद Sir, I have another question. आप बीच बीच में मत पूछो, ये लाइन कंप्लीट होने के बाद पूछना, ठीक है? आई एम वेरी हैप्पी कि आप पूछ रहे हो। तो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का मतलब है ये भी एक कम्युनिटी जैसा है, बट यहाँ पे एनर्जी होगा और मटेरियल्स, इसका साइक्लिक फ्लो होगा, और एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा। जब आप विंडो में देखते हो एंटर वर्ल्ड, तो आप इकोसिस्टम देखते हो या मोजाइक इकोसिस्टम देखते हो? इकोसिस्टम देखते हो या मोजाइक इकोसिस्टम देखते हो? बोलो। मोजाइक इकोसिस्टम्स, एक नहीं, आप पूरा बहुत सारे इकोसिस्टम देखते हो। जैसे ग्रासलैंड देखते हो, और क्या देखते हो? बोलो। पॉन्ड इकोसिस्टम देखते हो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखते हो, तो एक मोजाइक इकोसिस्टम देखते हो। और पूरा इंडिया में बहुत सारे बायोम्स होता है कि नहीं? ओके, एक दो बायोम्स, ट्रॉपिकल बायोम्स, टेम्परेट बायोम्स, डेजर्ट होता है, ऐसा होता है कि नहीं? तो बायोम्स भी एक लार्ज इकोसिस्टम है, कनेक्टेड इकोसिस्टम है, लार्जर इकोसिस्टम। और इसका क्या सेम है? क्लाइमेट सेम है। क्या सेम है? क्लाइमेट। जहां तक क्लाइमेट सेम है, ये पूरा एरिया मेरा है, इससे क्या बोलते हैं कि नहीं? तो ट्रॉपिकल। तो उसके बाद सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम का नाम बताओ। Biosphere. यस, इट इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। समझ में आया? दिस इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। कंप्लीटेड। बायोलॉजिकल हायरार्की हुआ। ओके, इस पर क्वेश्चंस हम करेंगे। अभी क्वेश्चंस पूछो। लक्ष्मी, अभी क्वेश्चंस पूछो।
Sir, what is very common between all means animals, plants, and microbes? वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लिविंग है कि नहीं सर? हेलो, लिविंग है कि नहीं सर? सब Yes, sir. लिविंग है। तो लिविंग का जो जो कैरेक्टर है सब में होगा, प्लांट्स में होगा, एनिमल्स में होगा एंड माइक्रोब्स में भी होगा। ठीक है, Yes. बट आप स्पेसिफिकली अगर पूछ रहे हो कि माइक्रोब्स हाउ डू दे डिफर, वो छोटा होता है। माइक्रो मतलब क्या है? छोटा। मैक्रो Very मतलब small क्या है? in हाँ, very मैक्रो का small in मतलब shape. बड़ा होता है। ठीक है, मैक्रो बड़ा होता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग, आज यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, तो इसको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट में बनाते हैं। कैसे? जैसे कोई बोलेगा मैं भगवान का अंश हूं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ या ना? बोलो। हाँ. हाँ, तो वो भगवान है? अरे वो भगवान है कि नहीं? हेलो, हाँ. अगर आप मुझे बोल रहे हो या लक्ष्मी यू आर देवी, श्री देवी का और भगवान का, लक्ष्मी देवी का अंश विशेष हो, तो आप ही भगवान हो कि नहीं? हेलो, अरे ये क्विक। सब नहीं हो हाँ, सकता ना. नहीं, पहले हाँ बोलो। पहले दिस इज करेक्ट और नॉट? इज करेक्ट। Yes. मैं तो लॉजिकली बोला ना, आप भगवान का अंश हो तो आप ही भगवान हो। बट फर्स्ट लाइन इज करेक्ट, बट सेकेंड लाइन करेक्ट नहीं है। कैसे करेक्ट नहीं है? कि बायो जो होता है, लाइफ जो होता है, या भगवान सोच लीजिए, जो भी हो, आप भगवान नहीं हो, बट आप भगवान का अंश हो। ठीक है, अंश। अगर आप भगवान बन जाओगे तो हम लोग क्या है? आपके अंदर तब पूरा जगत सब आपके अंदर आ गया, एब्सोल्यूट हो गए, तो हम लोग क्या भगवान नहीं है क्या? ठीक है, तो इसलिए ये माइक्रोबायोलॉजी उस टाइप का है, मैंने ये माइक्रोस्कोपी के, बट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। सेल जो होता है ना, बेसिक यूनिट, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? Cell. सेल। तो आप सेल लेके लाइफ बता सकते हो, बट वो सेल कंप्लीट लाइफ नहीं है। समझ में आया? बट दैट जी. इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सबको समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आगे चले? हेलो, Yes. उसके आगे चले। हाँ, तो कौन, हु कैन टेल मी, स्टार्टिंग से लास्ट तक कौन बता पाएगा? सब एटॉमिक पार्टिकल। सौभाग्य, ट्राई टू अन्नपूर्णा, ट्राई टू, कोई भी आप मुझसे स्टार्टिंग से लास्ट तक बताओ। पहले लक्ष्मी से शुरू करते हैं, बताओ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके बाद। और इतना Atomic particles, then molecular, and then shell, यस, then tissue system, organ systems, and then organism, then population, then community, then ecosystem, then mosaic ecosystem, and then biome, and then biosphere. वेरी गुड। ओके, तो यहाँ से हम लोग ऑलवेज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिखना शुरू कर लेंगे। एक पैराग्राफ पढ़ाएंगे, उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिखना शुरू कर लेंगे। आप बायो जैसे पढ़ते थे, मैं उसको चेंज कर दूंगा। जैसे बायो इज जस्ट लाइक ए शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन। आप पहले बहुत सारे क्वेश्चंस ले आइए, बहुत सारे वर्ड्स ले आइए, और उसको फ्रेम करके एक स्टोरी बना लीजिए। ठीक है, ये भी बायो है। और बायो क्या है? बायो इज ए कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग कहीं पर पढ़ेंगे। सपोज आई से व्हाट इज हिस्टोलॉजी। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? The study of cells and structure is called histology. नो, स्टडी ऑफ सेल तो साइटोलॉजी है ना। तो टिश्यू Study of tissue. सिस्टम, यस, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ये सब मिला के आपका हिस्टोलॉजी का मतलब टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। ऑर्गेनोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ ऑर्गन। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी का मतलब सेल। स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। Molecular biology. स्टडी ऑफ इकोलॉजी मींस, इकोलॉजी का मतलब क्या है? ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ऑर्गेनिज्म बियॉन्ड ऑर्गेनिजम्स अगर बात करेंगे तो वो सब इकोलॉजी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? दैट मीन्स हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे, उस कहाँ पर है ये पता चलेगा। सपोज दिस इज द पेन। सपोज इस पेन को जो देख रहे हो आप, ये मॉर्फोलॉजी है या एनाटॉमी है? सपोज दिस इज द पेन, मॉर्फोलॉजी है, एक्सटर्नल। Morphology. इसको तोड़ के उसके अंदर क्या है देखेंगे तो क्या होगा? एनाटॉमी होगा। इसका नाम क्या है? ये टैक्सोनॉमी होगा। इसका कॉस्ट क्या है? इसमें इसका कॉस्ट क्या है? वो इकोनॉमिक्स बायोलॉजी होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस होगा। और ये क्या करता है? ये क्या करता है तो लिखता है, ये फिजियोलॉजी होगा। ये फिजियोलॉजी होगा। पहले ये ऐसे था या आहिस्ता आहिस्ता ऐसे डेवलपमेंट हुआ है?
आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हुआ है, तो ये इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, समझ में आया? हेलो। Yes, sir. और इसमें हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, बट इसमें हम लोग पेन एंड पेपर में नहीं लिख सकते। यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके, यहाँ पर लिख सकता हूँ, बट पेन एंड पेपर में नहीं लिख सकता हूँ। तो ये क्या हुआ? तो उसका मतलब है इसका जो ब्रीड है, इसका जो वेराइटी है, इसका जो आइडेंटिटी है, वो जो नॉर्मल पेन है या पेंसिल है उससे अलग है। समझ में आया? सबको समझ Yes, में sir. आया? तो उस टाइप का बायोलॉजी है। जो हम है वो बायोलॉजी है, क्योंकि हम एक यूनिट ऑफ कस्म, हम लोग एक माइक्रोकॉस्म ऑफ लाइफ है कि नहीं? लाइफ हमारे अंदर है कि नहीं? हेलो। तो वी आर Yes, sir. द माइक्रोकॉस्म ऑफ लाइफ। तो हम लोग को एनर्जी चाहिए या एनर्जी नहीं चाहिए, बोलो? Energy चाहिए, sir. तो डैश इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। कहाँ से मिलता है एनर्जी? बोलो, कहाँ से आपको एनर्जी मिलता है? मॉर्निंग में कोई आते हैं और फिर इवनिंग को चले जाते हैं, उनसे ही तो एनर्जी मिलता है ना। हेलो, उनका नाम क्या है, बोलो कोई भी? Cells, sir. सेल से। बट कहाँ से मिलता है आपको एनर्जी? हो गया, आंसर मिल गया। Yes, सनलाइट sir. इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग वर्ल्ड, फॉर लिविंग वर्ल्ड। ओके, ये नहीं कि कहीं पर मिलता है, बट लिविंग वर्ल्ड के लिए तो ये होता है। ठीक है, Yes, sir. बायोस्फीयर के लिए होता है। फिर बताइए मुझे, डैश इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम? Biosphere. यस, आ गया, अभी फोन में आ गया। आप बोलना शुरू कर दिया, अपने आप बोले, मैं नहीं बोला। बायोस्फीयर, और इसको हम इकोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर और एक पॉइंट मुझे बताओ, ये जो इकोसिस्टम होता है ना, ये ओपन सिस्टम होता है या क्लोज सिस्टम होता है? ये जो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, ये जो Close. नो ओपन सिस्टम, हम लोग को एनर्जी बाहर से मिलता है कि नहीं? ओपन यस यस यस, बात करो बात करो, गलत हो बात करो, जो भी हो बात करो। तो एनर्जी एंड मटेरियल्स के लिए बाहर से आता है ना, तो दिस इज ओपन सिस्टम। फिर और एक बार बताओ, इकोसिस्टम तो हो गया हम लोग का, अभी बताओ एक, फिर और इक्वेशंस। बायोस्फीयर इज ए क्लोज सिस्टम, आप बोल रहे थे अभी, इज ए क्लोज सिस्टम, करेक्ट? बायोस्फीयर इज ए क्लोज सिस्टम। Why biosphere is a closed system? बोलो, इतना छोटा पॉइंट से मैंने ये सब पॉइंट्स ड्रैग किया था। शुभम, why biosphere is a closed system? बोलो, लक्ष्मी बोलो, why biosphere is a closed system? No, sir. अरे कोई भी सब्सटेंस बायोस्फीयर से आप कोई भी सब्सटेंस बाहर ले पाओगे क्या? ओके, बिकॉज नो मटेरियल, अगर मेरा स्कूटी चोरी हो गया आपका, तो इज इट इनसाइड द वर्ल्ड और इट इज आउटसाइड द वर्ल्ड? Inside the. तो नो मटेरियल कैन, हाँ, कैन बी टेकन आउट। तो क्लोज सिस्टम का मतलब है क्लोज्ड फॉर एनर्जी और क्लोज फॉर मटेरियल्स। यस, क्लोज फॉर मटेरियल्स। यहां तक हो गया। अगर एनर्जी होगा, अगर एनर्जी होगा तो क्या होगा? एनर्जी होने से क्या होगा? ओपन एनर्जी, हाँ, एनर्जी होने से ओपन होगा, क्लोज तो नहीं होगा, एनर्जी होने से ओपन होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? हेलो, Yes, sir. यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो ओपन सिस्टम होगा अगर, हाँ, तो ठीक से दिखाई दे रहे हैं सबको? हेलो, सबको ठीक से दिखाई दे रहे हैं? तो सुपर एनर्जी ओपन, ओपन फॉर एनर्जी, लिख लो, ओपन फॉर एनर्जी। कंप्लीट, कंप्लीट हुआ सबका? Yes, आगे, sir. आगे चलते हैं। हेलो, आगे चलते हैं। ये जितना मैंने पढ़ाया उससे ही हमने बनाए। ये जो क्वेश्चन सब कहाँ से बनाया? जो पढ़ाया वहीं से बनाया। और एक क्वेश्चंस बनाते हैं। ओके, डैश इज द प्रोसेस, डैश इज द प्रोसेस by which solar energy
solar energy enters into biosphere. Okay, मैं आपका ज्यादा टाइम आज नहीं पढ़ाऊंगा, आपको इंटरेस्टिंग चाहिए तो उसको इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा. So how solar energy? Can you name one process? Should I give some options and you have to tell? Hello. Yes, sir. Is it respiration? Is it photosynthesis? Is it metabolism? क्या है? What is the process by which solar energy is entering into the biosphere? बोलो. Photosynthesis, respiration, transpiration, guttation, क्या है वो? बोलो. कौन सा प्रोसेस है? Photosynthesis. Yes, photosynthesis is the only process by which solar energy enters into the biosphere. Very good. हो गया? हेलो. ठीक है? Yes, sir. उसके आगे चलते हैं. ये हम लोग का हो गया. अभी आपको लिखना है लिविंग कैरेक्टर्स. देखो, लिविंग कैरेक्टर्स. लाइव तो बोलना मुश्किल है, but you can tell me the living characters. Yes, बोलो. लिविंग कैरेक्टर्स क्या क्या है? कुछ भी बोलो जो आपको मालूम है. एक है प्रोटोप्लाज्म. लिविंग कैरेक्टर है कि नहीं? एक है सेल, सेलुलर स्ट्रक्चर. लिविंग है कि नहीं? एमएस. एक है मेटाबॉलिज्म. लिविंग है कि नहीं? एक है न्यूट्रिशन. वेरी गुड. एक है न्यूट्रिशन. खाना पड़ेगा कि नहीं? एक है लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल एंड लाइफ स्पैन. ये भी लिविंग है कि नहीं? ओके. रिप्रोडक्शन एक लिविंग कैरेक्टर है कि नहीं? रिप्रोडक्शन may not be a defining character, but reproduction is also a living character or not? एक है irritability. Irritability मतलब response. Response is a living character. Response is a living character. और एक पॉइंट लिखो यहाँ पर. एक पॉइंट लिखो. अडाप्टेशन होता है कि नहीं? अडाप्टिबिलिटी. अडाप्टेशन आप एडजस्ट कर लेते हो कि नहीं कहीं पर? तो adjustment is a living character. आपका consciousness है कि नहीं? हेलो. Consciousness is a defining character. And human being का consciousness है या self consciousness है? हेलो. Human being का consciousness है या self consciousness है? Self consciousness है. और भी ज्यादा consciousness होता है. Self consciousness. And आहिस्ता आहिस्ता MS का मतलब क्या है? MS आपका पूरा नाम बताओ. ओके. आहिस्ता आहिस्ता. मधुमिता सुतार. हाँ, मधुमिता. यू आर ऑल्सो गुड. लक्ष्मी ऑल्सो गुड. सब बात कर लिया ना मेरे से थोड़ा थोड़ा. सब में आपका एक फ्रेंड भी और एक फ्रेंड भी आपका आए हैं. उनका नाम भी मुझे याद है जो स्टार्टिंग है. सब राजीव लोचन, शुभम, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, अंजू ऐसे बच्चे हैं. ठीक है. तो आपका अडाप्टेशन पावर, कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस सब कुछ है कि नहीं आपका? है. बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग. और एक कैरेक्टर बताओ. आप चेंज होते हो कि नहीं? ना जैसे हो ऐसे. छोटे बच्चे थे, आप बड़े हो गए कि नहीं? तो ये इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस. थोड़े बड़े हो गए, पूरा बड़े तो नहीं हुए, थोड़े बड़े हो गए. तो ये इवोल्यूशन है. चेंज होता है. फिर हम लोग का मूवमेंट होता है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा मूवमेंट या लोकोमोशन. ये भी एक कैरेक्टर है. मूवमेंट और लोकोमोशन ये भी एक कैरेक्टर है. और क्या कैरेक्टर है? और भी बहुत सारे कैरेक्टर है. ठीक है. न्यूट्रिशन तो हमने बोल चुके हैं. इरिटेबिलिटी बोल चुके हैं. होम्योस्टेसिस बैलेंस होता है कि नहीं? होम्योस्टेसिस वो भी एक कैरेक्टर होता है. तो इसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. तो अभी थोड़ा हम दिखाते हैं आपको कि हम आपको क्या क्या दिखाएंगे फ्यूचर में. ठीक है.
तो इसको हम शेयर करते हैं उससे, ओके। तो लाइफ का मतलब क्या है हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। लाइफ का मतलब क्या है, ये लिविंग वर्ल्ड है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग वर्ल्ड, ओके। तो एक दो क्लास में हम आपको इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में ले लेंगे, और वहां पर हम आपको प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स सब तीनों लिविंग है, तो सबके अंदर क्या क्या कैरेक्टर है, सबके अंदर सेल होता है, सबके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। और लिविंग वर्ल्ड में कैसे लाइफ कैसे आगे जाता है उसके बारे में हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो आगे चले, हेलो। तो ये देखो, पहले एक सीड था और उसके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। एक सीड था और उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसमें लाइफ था, डेट जैसा लगता था बट उसमें लाइफ था। उसके अंदर पानी कम था, जब पानी मिल गया, आप लोग इस टाइप के हो, आप सीड जैसा हो। जब आपको अच्छा टीचर, अच्छा एनवायरमेंट, अच्छा एरिया मिल जाता है तो आपका एक्सप्रेशन आता है एंड आप लोग जिंदगी में फ्लोरिश करते हो। फ्लोरिश करते हो समझ में आ गया, फ्लोरा फ्लोरिश, आपका जिंदगी क्या होता है, पुष्पित होता है, मतलब फ्लावर्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। हेलो। तो लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ पे फ्लावर आना चाहिए, सक्सेस का फ्लावर्स आना चाहिए। अब यहाँ पर आ जाओ, हाँ तो बोलो लाइफ क्या है। लाइफ इज ए यूनिक complex organization of molecules expressing through dash, बोलो, expressing through dash, expressing through chemical reaction which leads to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction। थोड़ा थोड़ा बताया था अभी। तो अभी मुझे बताओ, इसको देख के मुझे बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा इसको देख के, कि सपोज लाइफ के अंदर हम लोग कुछ पूछेंगे आपको, आपको बताना पड़ेगा। तो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बोलो व्हाट इज, पूछो पूछो, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन में, यस सेल होता है, सेल होता है। अन्नपूर्णा करेक्ट, और भी आपका फ्रेंड भी जो बोले करेक्ट है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। बट लाइफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से बिगिंस होता है, लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लाइफ ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट व्हिच लेवल, बोलो कहां से शुरू, माइक्रोस्कोपिक लेवल। हाँ, बट उस माइक्रोस्कोपिक क्या जो भी बोल लो उसके लिए स्वस्तिक, उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं, तो उसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ओके। और वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होना जरूरी है। तो ऑर्गेनिक मैक्रो होता है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होना जरूरी है। तो उस सब मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम क्या होगा, जैसे आपका डीएनए होता है कि नहीं, हेलो, जैसे आपका आरएनए होता है कि नहीं, जैसे आपका प्रोटीन होता है, हम लोग के अंदर प्रोटीन है कि नहीं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, शुगर, ऐसे कुछ होता है ना, पॉलीसैकेराइड्स, ये सब होता है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में गारंटेड है, मैक्रोमोलिक्यूल्स ये ऑर्गेनिक होगा कि नहीं, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होगा वो ऑर्गेनिक होगा कि नहीं, बोलो इज इट ऑर्गेनिक और नॉट, मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होता है ऑर्गेनिक होता है। तो ऑर्गेनिक, तो दो द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, but life organization begins from what, समझ में आ गया आपको, molecules, Yes, sir. बट अन्नपूर्णा यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, क्या है, वायरस जो है ना वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, So we can say it both living and non-living, because it inside the human body it is living, but outside the human body it is non-living. Yes, it is in threshold of life, it is non-living and living। तो थोड़ा ट्रिकी वे में मैं बता देता हूँ,
वायरस के अंदर नो सेल है, नो सेल मतलब उसके अंदर सेल नहीं है, आसेलुलर है। नो सेल को क्या बोलेंगे? आसेलुलर। अगर कोई चीज आसेलुलर होता है तो वो नॉन लिविंग है, क्योंकि बेसिक यूनिट क्या है? क्या बताया था बेसिक यूनिट? सेल है। और अगर वो आसेलुलर है तो नहीं है। और फिर लिविंग क्यों आपने बताया? क्योंकि लाइफ का ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया। वायरस के अंदर क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है कि नहीं? हेलो, इधर डीएनए और आरएनए। हाँ, वेरी गुड अन्नपूर्णा, गुड। आपको फर्स्ट टाइम गुड मिला इस क्लास में, ठीक है। लक्ष्मी को Thank you, मिला, sir. लक्ष्मी को भी मिला है, पर लक्ष्मी को और एक पॉइंट पर बताऊंगा मैं। तो डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। बट प्रोटीन गारंटेड है, प्रोटीन तो गारंटेड है, क्योंकि कोई भी चीज का बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है ना, वो प्रोटीन से शुरू होता है, ठीक है। कोई भी चीज का बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है ना, वो प्रोटीन से शुरू होता है। तो जब प्रोटीन से शुरू होगा कोई भी चीज, तो क्या होगा? अगर प्रोटीन में शुरू होगा तो क्या होगा? तो बिल्डिंग ब्लॉक वही होगा। तो प्रोटीन तो मिनिमम चाहिए, और प्रोटीन इज ए मैक्रोमोलिक्यूल है कि नहीं? हेलो, प्रोटीन Yes, sir. इज ए Macromolecule. मैक्रोमोलिक्यूल भी होता है। वेरी गुड, यहाँ तक हो गया हम लोग का, ठीक है। तो उसके आगे चलते हैं। तो यूनिक है, यू आर यूनिक और नॉट? All of you are unique or not? Yes, we are unique because we are the product of reproduction, product of sexual reproduction. All the gametes are unique. All the zygotes are unique. All living organisms are unique. तो लाइफ में कोई भी, क्योंकि सबका प्रोटोप्लाज्म सेम नहीं है, सबका मेटाबॉलिज्म सेम नहीं है, सबका सेल सेम नहीं है, तो यूनिक और कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। हम लोग के अंदर ओनली ऑर्गेनिक है या ओनली इनऑर्गेनिक है या दोनों है? मृयांशी, हम लोग के अंदर दोनों है। दोनों है, तो कॉम्प्लेक्स है। तो आपका सिंपलर फॉर्म भी है, इनऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक है, तो दोनों मिला के आपको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। फिर हमने मॉलिक्यूल्स बोला, मॉलिक्यूल्स आपने ये इकोलॉजी एंड फर्स्ट चैप्टर को हमने कनेक्ट कर दिया। अभी तक शुरू नहीं किया चैप्टर्स, चैप्टर शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो केमिकल रिएक्शंस हम लोग के बॉडी में है, एक बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से हम लोग क्या है? रिएक्शंस एंड रिएक्शंस। तो हम लोग के पास मेटाबॉलिज्म होता है कि नहीं? हेलो, यस सर, मेटाबॉलिज्म होता है। हाँ, तो मेटाबॉलिज्म ओनली कैटाबॉलिज्म होगा या ओनली एनाबॉलिज्म होगा? बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। यस, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म होता है। वेरी गुड, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। जब एनाबॉलिज्म होता है उसको हम कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और जब कैटाबॉलिज्म होता है ये डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। तो शुड आई कंफ्यूज यू? हमें आपको एक कंफ्यूजन पूछूं तो आप मुझे बताओ कि जब भी आपका रेस्पिरेशन होता है उसको कैटाबॉलिक बोलेंगे या एनाबॉलिक बोलेंगे? रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। हाँ, अगर रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक तो वो क्या डिस्ट्रक्टिव है? रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक, इज इट डिस्ट्रक्टिव? तो कैसे डिस्ट्रक्टिव हुआ और कैसे कंस्ट्रक्टिव हुआ? एनर्जी यूज्ड होता है तो कैटाबॉलिक होता है, एनर्जी गेन होता है तो एनाबॉलिक होता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा ट्रिक से, अगर हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाएंगे कोई भी चीज, अगर हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाते हैं, तो Yes. सिंपलर से हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उसका मतलब क्या है? हम लोग सिंपलर से कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। Yes, और sir. अगर सिंपलर से कॉम्प्लेक्स बना रहे हो तो वो एनाबॉलिक है। पर जब रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके वहां से एनर्जी लेते हैं, ओके। तो कोई भी आदमी बैंक में पैसे जमा करता है तो वो कंस्ट्रक्टिव है। सब लोग बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है, करो करो करो, अच्छा है, जितना बैंक पे रहे क्या बैंक बैलेंस अच्छा है, आप इतना हार्डवर्क की, ये आपका सिक्योरिटी है। बट जब भी उसका एडमिशन आ जाता है या उसका हेल्थ खराब है, अगर वो बैंक से नहीं लाएगा तो क्या बोलेंगे? अरे बैंक से लाओ ना, ये नीडेड है कि नहीं? तो इवन इफ चल रहा रेस्पिरेशन बैंक से पैसे कम हो रहा है, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक हो रहा है, बट वो जरूरी है, एनर्जी रिलीज होना चाहिए, एनर्जी सबको देना चाहिए, काम होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये यूजफुल है, ये दोनों यूजफुल होता है, चाहे वो कैटाबॉलिक हो या एनाबॉलिक हो। तो बायोमास के हिसाब से
तो सब बोलेंगे कि अपना पैसे खर्च करो, अच्छा है, आपका हेल्थ के लिए ये जरूरी है। ठीक है, इसको क्लियर करता हूँ। हेलो, ये समझ में sir. आ गया? Yes, sir. तो ग्रोथ कैसे होता है बोलना, ठीक है, इसको क्लियर करता हूँ, फिर आप मुझे बताओ ग्रोथ कैसे होता है। जब अनाबल्जिम कैटाबल्जिम से ज्यादा होगा या कैटाबल्जिम अनाबल्जिम से ज्यादा होगा, ग्रोथ कैसे? Anabolism catabolism से ज्यादा होगा। ओके, वेरी गुड। जब हमारे घर में 1 लाख कमाया और 50,000 खर्च किया, फिर भी 50,000 बचा, तभी जाके हम लोग बोलेंगे कि हमारा ग्रोथ हो रहा है। अगर हम लोग क्या है प्राइवेट में एडमिशन करेंगे डॉक्टर बनने के लिए, 1 करोड़ खर्च करेंगे, 60,000 का सैलरी मिलेगा, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बाद में देखा जाएगा। तो ये डिस्ट्रक्टिव है कि नहीं? डिस्ट्रक्टिव, पैसे ज्यादा खर्च किया, रिटर्न नहीं मिला। बट यहाँ पर अनाबल्जिम ग्रेटर देन कैटाबल्जिम मतलब आप अच्छे से प्रिपेयर करो जिससे आपको अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए। तो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ एक यहाँ पर है, सब कंसंट्रेट करो यहाँ पर। ओके, ग्रोथ यहाँ पर है। ओके, so many students are trying to join but उनका प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क शायद। तो ठीक है, ग्रोथ इज अनाबल्जिम ग्रेटर देन कैटाबल्जिम। ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव चेंज। हाँ, पूछो। क्वांटिटेटिव चेंज और क्वालिटेटिव चेंज? ग्रोथ Quantitative. Yes, can you measure or not, Lakshmi? Growth, can you measure or not? Yes, we can measure. Yes, कोई भी चीज अगर आप मेजर करते हो, it can be measured. Okay, तो मैं रेड में लिख लेता हूँ तो थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा। Can be measured. आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? एनवायरमेंट ऑनलाइन का बेस्ट एनवायरमेंट लग रहा है कि नहीं? जैसे मुझे देख पा रहे हो, लिख रहा हूँ, ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको? ठीक से सबको Yes, अच्छा sir. लग रहा है? और मेरा नॉलेज तो अन्नपूर्णा को पता होगा, नहीं अन्नपूर्णा? मेरा नॉलेज आपको पता चल रहा है कि नहीं? नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके आगे चलते। ओके, आप बहुत सारे काम होता है ट्रस्ट में होता है और बहुत सारे काम होता है टेस्ट करने के बाद होता है। तो आप दोनों कर सकते हो। मुझे पहले ट्रस्ट भी करो, ओके, उसके साथ साथ टेस्ट भी करो, नो प्रॉब्लम। तो ग्रोथ हो गया क्वांटिटेटिव चेंज। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव चेंज है या क्वालिटेटिव चेंज है? बोलो। क्वालिटेटिव। वेरी गुड। गुड मिल गया आपको भी। ओके, क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव चेंज क्यों है? सपोज मैं एक मोटेल समझ में आ रहे? मोटर डाइवर होटल, मोटेल, ढाबा। अरे ढाबा समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. शुभम, राजीव लोग Yes, ढाबा sir. तो हमने एक ढाबा बनाया और मोटेल बनाया यहाँ पर, और एक आदमी आया यहाँ पर बनाया। ओके, क्योंकि हमने ओनली 5 लाख इन्वेस्ट किया था, वो भी 5 लाख इन्वेस्ट किया। तो ये मेरा जो ढाबा बना था, जो पैसे कमाया था, ये एक क्वालिटेटिव चेंज था या क्वांटिटेटिव चेंज था? क्वांटिटेटिव। हमने 5 लाख खर्च किया, वो भी 5 लाख खर्च किया। क्वांटिटेटिव। हाँ, बट अगर मैं अच्छा खाना बनाता हूँ जिसका टेस्ट कहीं पर नहीं मिलता है, तो वो क्वांटिटेटिव चेंज है या क्वालिटेटिव चेंज है? क्वालिटेटिव। ये क्वालिटेटिव चेंज है। ठीक है, क्वांटिटेटिव। तो आपको क्या करना है? क्वांटिटेटिव चेंज में ज्यादा बिलीव करना है या दोनों में बिलीव करना है या क्वालिटेटिव में बिलीव करना है? दोनों दोनों में में। believe हाँ, करना। दोनों में। वेरी गुड, दोनों में। अगर आप ग्रोथ नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो ग्रोथ क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो आई कैन नॉट मेक अनदर जगन्नाथ टेम्पल, बट अनदर जगन्नाथ टेम्पल मैं बोलूंगा यहीं पर कार फेस्टिवल होगा, यहीं पर आ जाओ। आप लोग आ जाओगे क्या? भुवनेश्वर में होगा और कहीं पर नहीं होगा। हम बड़ा सा मंदिर बना देंगे, ये एक नहीं होगा। ये आहिस्ता इवोल्यूशन के साथ हुआ है डेवलपमेंट। आप बोलोगे कि पेरेंट्स को कि 1 लाख में कमा के दे दूंगा कोई भी फॉर्म में, वो लाइक करेंगे? या आप जब डॉक्टर बन जाओगे वो ज्यादा लाइक करेंगे? बोलो। डॉक्टर बनने से हाँ, ज्यादा लाइक करेंगे। हाँ, क्योंकि आपका क्वांटिटी से उनको एक लेवल तक मतलब है, बट आपका क्वालिटी से या डेवलपमेंट और डेवलप पर्सनालिटी में ज्यादा मतलब है। ठीक है,
जैसे मैं और एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे इंसान का लाइक बिगेट्स लाइक और नॉट, आपको मालूम होगा, लाइक बिगेट्स लाइक और नॉट। ह्यूमन बीइंग देगा, मंकी देगा, इट इज द यूनिवर्सल रूल। फिर भी हम लोग बोलते हैं ना कि जो मेरे किड्स आते हैं उन लोग तो अभी +2 साइंस में पढ़ रहे हैं, अभी मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एक साल वेट करके मेडिकल प्रिपेयर करेंगे, और उनको जब मिल जाएगा अभी जाके, तभी भी मेरा काम खत्म नहीं होगा। जब वो आदमी बन जाएंगे, ओके, आदमी का बच्चा आदमी नहीं है क्या? ह्यूमन बीइंग का बच्चा ह्यूमन बीइंग नहीं है क्या? हे, तो why they are saying कि you must be qualitatively converted into a human being, उसका मतलब समझ में आया? अभी आपका ग्रोथ हो रहा है, अभी आप डॉक्टर नहीं बने, समझ में आया आपको? Yes, sir. तो डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव चेंज, जिसका रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं तो बोल रहा था, मेरे पापा मुझे बोल रहे हैं क्या मैं आदमी नहीं बना अभी तक, जब मैं छोटा था। अब तो आदमी का बच्चा तो आदमी है, ह्यूमन बीइंग का बच्चा तो ह्यूमन बीइंग होगा, बेबी भी तो ह्यूमन बीइंग है, ओके। नो, यू शुड बी इंडिपेंडेंट, यू शुड बी डेवलप्ड, यू शुड हैव ग्रोथ, यू शुड हैव डिफरेंशिएशन, एंड यू मस्ट बी अ डॉक्टर, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पॉन्सिवनेस होता है कि नहीं आपका? रेस्पॉन्स करते हो कि नहीं बाहर का वर्ल्ड से? Yes, sir. कोई गाली देगा, आर यू हैप्पी? नो, थोड़ा दुखी हो जाते हो। कोई आपको प्रेज करेगा तो आप खुश हो जाते हो। तो ये रेस्पॉन्सिवनेस जो आ गया आपका, इम्पोर्टेंट है। पहले अपना लेवल में आप रेस्पॉन्सिवनेस रहता है, फिर सोसाइटी के लिए भी आपका कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, रेस्पॉन्सिवनेस के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है, ठीक है। फिर आप अडॉप्ट करते हो। जब आप फर्स्ट डे में स्कूल में गए थे या कॉलेज में गए थे, आपका फर्स्ट डे, इट वाज डिफरेंट और नॉट? हेलो, Yes. आपका जो Yes, sir. Yes, जो sir. फर्स्ट डे था, और स्लोली उस स्कूल का क्लास कैप्टन आप बन गए, उस कॉलेज का कैप्टन बन गए, और आप अच्छे से उस स्कूल का फर्स्ट बच्चा भी बन गए। तो फर्स्ट डे तो रो रहे थे एलकेजी में कि आई विल नॉट गो टू द स्कूल, ओके। तो ये जो चेंज हुआ, ये अडाप्टेशन के कारण हुआ, सोसाइटी के साथ अडाप्टेड हो गया, ओके। जब आप डॉक्टर बनने के लिए सोच रहे हो तो आपको सब खराब चीज देंगे कि बैड स्मेल आएगा, जो होता है ना, जो ऑटोप्सी रूम होता है, वहां से डेड बॉडी का डिसेक्शन में, तो आप अडॉप्टेड नहीं हो। फिर जब आप बाय द एंड ऑफ योर एमबीबीएस विल बी अडॉप्टेड, समझ में आ गया। और रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए। आप बोलोगे कि रिप्रोडक्शन तो जरूरी नहीं है, करेक्ट और नॉट? रिप्रोडक्शन तो जरूरी नहीं है, करेक्ट और नॉट? हेलो, No, it is not correct. Reproduction is हाँ, essential. एसेंशियल। बट जो इससे मैं थोड़ा रिवर्स कर लेता हूँ, जो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा वो लिविंग नहीं है। इज इट करेक्ट? No. नो। जैसे कोई बाबा बन गया, कोई नॉन बन गया, कोई सोशल वर्क किया, नवीन पटनायक का बच्चा नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है, क्या वो ह्यूमन बीइंग नहीं है क्या? वो ह्यूमन बीइंग है। अच्छा कैसा ह्यूमन बीइंग है? नवीन पटनायक, मोदी जी, ममता जी, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लीडर है, स्वामी विवेकानंद भी है। तो दैट मीन्स रिप्रोडक्शन होना चाहिए। बट रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है या इज नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टर? क्विक, Not a defining character. नॉट ए Not a डिफाइनिंग defining कैरेक्टर, character. हाँ, बट इट इज ए लिविंग कैरेक्टर, ठीक है। बट इट इज ए लिविंग कैरेक्टर। और एक Living पॉइंट, हाँ, और एक पॉइंट मैं बताता हूँ, ज्यादा अच्छा आपको लगेगा। हेलो, और एक पॉइंट मैं बताता हूँ जो आपको Yes. ज्यादा अच्छा लगेगा। वो क्या है मैं बताता हूँ। वो है रिप्रोडक्शन के साथ कनेक्शन नहीं है। आपका जो सेल है ना, सेल डज रिप्रोडक्शन, करेक्ट है कि नहीं? सेल डज रिप्रोडक्शन, करेक्ट है कि नहीं? सेल मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं? माइटोसिस Yes. करते हैं कि नहीं? सेल डज रिप्रोडक्शन, माइटोसिस और वेरी रेयरली म्यूसिस करते हैं। तो उसका मतलब आपका अंदर रिप्रोडक्शन है, आप रिप्रोडक्शन करो या ना करो, आप अंदर होके रुक जाओ, नो प्रॉब्लम। आप इंडिविजुअल में आप रिप्रोडक्शन नहीं करते, बट स्पीसीज
का इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्शन करते हैं, नहीं तो होमो सापियंस सापियंस नहीं रहेगा, होमो सापियंस सापियंस चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हम लोग का। तो लाइफ का मतलब आ गया हम लोग को। कैन यू डिफाइन लाइफ? थोड़ा थोड़ा जो जो मैंने बताया ये कर पाओगे? डिफाइन लाइफ, कैन यू डिफाइन लाइफ? हेलो, कुछ भी बोलो। इज ए कॉम्प्लेक्स यूनिक organization of molecules expressing through chemical reactions or metabolism which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. कुछ भी वर्ड याद है? मैं बोला था शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन में, बोलो क्या क्या या वर्ड याद है आपको? यूनिक, क्या क्या बताया था? यूनिक, क्या क्या बताया था? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूल्स बताया था। ओके, मॉलिक्यूल्स भी था ना शायद, मैं मुझे जितना जानकारी है। हाँ, तो फिर क्या था? कैटाबोलिज्म भी था, अडाप्टेशन था, मेटाबॉलिज्म था। ओके, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म होता है मेटाबॉलिज्म, कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म। हाँ, और केमिकल रिएक्शन था ना, केमिकल रिएक्शन था जो मेटाबॉलिज्म है। ओके, अडाप्टेशन था, ग्रोथ था कि नहीं? रिप्रोडक्शन था। ओके, और भी बहुत कुछ, हाँ, न्यूट्रिशन भी था। जो भी है, जो जो डेफिनेशन हमने बताया था इसमें ये सब था। अडाप्टेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पॉन्सिवनेस था, ऐसा कुछ था। तो ठीक है, डेवलपमेंट। हाँ, तो जरूरी नहीं है, यू कैन डिफाइन इट इन मेनी डिफरेंट वेज। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होना चाहिए, इवोल्यूशन होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस होना चाहिए। और क्या आ गया अभी? और क्या आ गया? सेल्फ रेप्लिकेशन, इवोल्यूशन, चेंज होता है, ऑलवेज चेंज होता है कि नहीं? सेल्फ रेगुलेट, अपने आप को अगर रेगुलेट नहीं करते हो ना, डेथ होने का चांस है। गाड़ी कोई चला रहा है और रेगुलेशन नहीं है। ओके, रेस्पॉन्सिव टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो ये था। हेलो राजीव लोचन, शुभम, स्वस्तिक, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, अंजू, एमएस, जो भी हो, तो ये था। ये जो मैंने बोला ये क्या था? ये मैं आपको बोला कि ये इंट्रोडक्शन था, बट मैं मेरा इन डेप्थ तो दिखाऊंगा ना। हेलो, थोड़ा इन डेप्थ दिखाते हैं ना क्या प्रॉब्लम है? इन डेप्थ एक में इन डेप्थ चलो दिखाते हैं। इन डेप्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? यस सर। हाँ, तो इन डेप्थ दिखाता हूँ मैं आपको कि इन डेप्थ कैसे होता है। ठीक है, चलो इन डेप्थ दिखाते हैं। एक पॉइंट ले लेंगे, इंटेंसिव कैसे होता है ये देख लो। तो आप क्या बोले थे मुझे? मेटाबॉलिज्म लिखो। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट्स ए लिविंग कैरेक्टर एंड यू टोल्ड मी इट इज ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टुगेदर, इट्स कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। एंड देन यू टोल्ड मी ये कैटाबॉलिक भी हो सकता है, एनाबॉलिक भी हो सकता है। तो आपने मुझे बोला इट कैन बी एनाबॉलिज्म और इट कैन बी कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बोला था एंड कैटाबॉलिज्म बोला था। ठीक है, और फिर उसका डिफरेंस लिखने के लिए आई एम सेइंग कि वहां से आपको इन डेप्थ समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ा है आज। तो ये कंप्लीट होने के बाद विल नॉट गो फॉर फर्दर डिस्कशन, बट ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए। दिखाई दे रहा है ना सबको? तो आपने एनाबॉलिक के लिए क्या बोला था? बोलो मुझे, कंस्ट्रक्टिव बोला था या डिस्ट्रक्टिव बोला था? बोलो। कंस्ट्रक्टिव। लिखो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, सब लिखो। कंस्ट्रक्टिव बायोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पे तो खत्म हो चुका है, तो दैट मीन्स इट इज कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। और ये क्या है आपने बताया था? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। सबको दिखाई दे रहा है? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। बट मैंने बोला ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है, तो कंस्ट्रक्टिव कैसे होता है? ये इंक्रीज इन बायोमास होता है। अगर ऑर्गेनिक बायोमास मतलब मेनली ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। पानी हमारा अंदर है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अंदर है। अगर माइक्रोस्कोपिक आंख मिल जाएगा
जैसे यशोदा माँ का वो कृष्ण के अंदर देखे थे ना, एंटर बायोस्फीयर। हेलो, देखे थे कि नहीं कृष्ण के अंदर यशोदा माँ, देखे थे कि नहीं? अरे Yes, yes. हाँ, तो एंटर वॉल देखे थे। हमारे बॉडी के अंदर भी वाटर 2/3, बाहर भी 2/3 है। ओके, और हमारे बॉडी के अंदर आयरन है कि नहीं? आयरन ओर है कि नहीं हमारे बॉडी के अंदर? तो है, हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और बाहर भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर आल्सो देयर। तो डिक्रीज इन बायोमास के कारण इसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कम होने के कारण इसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। तो यू नो दिस। तो थर्ड पॉइंट में आइए, मोस्ट इंपोर्टेंट एनाबॉलिक प्रोसेस का नाम मालूम है आपको? एक एग्जांपल मुझे बताओ। फोटोसिंथेसिस मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि दैट इज द ओनली प्रोसेस solar energy enters into the biosphere, and most important catabolic process का नाम क्या है? बोलो बोलो। मोस्ट इंपोर्टेंट। Respiration. वेरी गुड, वेरी गुड। तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिख लो, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 H2O। ओके, थोड़ा हायर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपको। ओके, आज तो थोड़ा इन डेप्थ पढ़ाया, ये यहाँ से पता चलेगा आपको, बट थोड़ा हायर हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। जब भी नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग का, तो ज्यादा हायर होगा, तो आपको अच्छा लगेगा कि कहाँ से हम शुरू किए और कहाँ आ गए, और पॉजिटिव चेंज हुआ कि नहीं। क्योंकि आप लोग प्रॉपर्ली अडॉप्टेड होना चाहिए कि नहीं? हेलो। Yes, yes. और आप लोग इवोल्व होना चाहिए, आप लोग प्रोग्रेसिवली इवोल्व होना चाहिए। आपका इरिटेबिलिटी इतना अच्छा है, आपका अडॉप्टेशन इतना अच्छा है। तो वाटर, ये जो वाटर कम्स फ्रॉम ऑक्सीजन, कम्स फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज, तो इस साइड में इनऑर्गेनिक था कि नहीं? देखो ये इनऑर्गेनिक है कि नहीं? और इस साइड में क्या हो गया? ऑर्गेनिक हुआ, तो कॉम्प्लेक्स हुआ कि नहीं? सिंपल कॉम्प्लेक्स हुआ कि नहीं? बोलो सब। Yes, sir. और लाइट एनर्जी चाहिए कि नहीं? लाइट एनर्जी दिया कि Yes, नहीं? चाहिए. क्लोरोफिल। तो इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? लक्ष्मी। Endothermic. एंडोथर्मिक एनर्जी आपने दिया, और ये क्या होगा? C6H12O6 प्लस 6O2, क्या हो गया बोलो? 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो आपने ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनाया या ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाया? देख के बोलो। Organic से inorganic. फिर कॉम्प्लेक्स से Simpler. सिंपलर बनाया, फिर एनर्जी लिबरेटेड हुआ कि नहीं? Exothermic reaction. वेरी गुड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एनर्जी लिबरेटेड आउट। आप समझ में आया क्या पढ़ाया मैंने? फिर थोड़ा आगे पढ़ाएंगे। ये कंप्लीट करो, फिर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक का मतलब 2 लाइन 3 लाइन बताएंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ाया। ठीक है, ये हो गया, सबका हो गया? Yes, sir. वेरी गुड, सब लिख लिया? आगे रिटेन। ये शुगर है, शुगर इज ऑर्गेनिक। तो हाँ, अभी हम थोड़ा ऊपर से नहीं तो लिखते हैं, अरे कोई नहीं लिखा तो उनको इजी होगा। ठीक है, ऊपर से थोड़ा लिख लेते हैं, एडजस्ट हो जाएगा उनका। फोर्थ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ग्राफ है, एनर्जी लेवल है। ये इनिशियल एनर्जी होता है, ठीक है, और ये फाइनल एनर्जी होता है, क्योंकि एनर्जी इज गिवन और एनर्जी इज टेकन। बोलो बोलो, एनर्जी इज गिवन और एनर्जी इज टेकन। यहाँ पर एनर्जी क्या हुआ? एनर्जी इज टेकन ना, तो फाइनल एनर्जी क्या होगा? हायर चला कम जाएगा। होगा। नहीं, इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी हायर होगा, क्योंकि एनर्जी इज टेकन।
एनर्जी लिया है ना, और यहाँ पर Yes, एनर्जी sir. इज लिबरेटेड आउट, तो फाइनल एनर्जी से इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के लेवल कम होगा। तो इसका डेल्टा एच फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी क्या होगा बोलो? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, और इसका डेल्टा एच क्या होगा बोलो सब? नेगेटिव होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ये नेगेटिव होगा। तो अभी सेकंड पॉइंट में जाएंगे, इंटरेस्टिंग पॉइंट में जाएंगे। सेकंड पॉइंट, अभी मुझे बताओ which is induced and which is spontaneous thermodynamically which is favorable? अरे ये आपके पास 1 लाख है, आपके पास 20 लाख कैसे आएगा? आपको कोई देगा तो आएगा, वो आपके मर्जी पर है क्या? नहीं है ना। तो ये थर्मोडायनामिकली स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और ये स्पॉन्टेनियस है। मेरे पास 1 लाख है, मैं 10,000 करना चाहता हूँ, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? आराम से कर पाऊंगा। हाँ, मैं फेंक दूंगा या किसी गरीब को दे दूंगा। ओके, तो मैं 0 भी हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस है, ये होता है नेचर में, बट ये नहीं होता है। तो उसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ग्रीन प्लांट्स करता है कि नहीं ओनली, और स्पॉन्टेनियस होता है तो आपका समझ में आ गया? रेस्पिरेशन इज डन बाय ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स, और ऑल द ऑर्गेनिजम्स। बोलो, respiration is done by only plants, only animals, or all the organisms in the world? All the organisms in the world. Yes, very good. And photosynthesis? Only plants. Photosynthesis by plants only. Only plants, only daytime. और एक बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, क्या नाम है आपका बताओ? एक बॉयज अच्छा कर रहे हैं, क्या नाम है बोलो? Very good. Only plants, only daytime, and yet through all the plants, animals, all the microbes, either aerobic or anaerobic respiration continuously for their survival, for energy release, it is essential. समझ में आया? समझ में आया? तो हमने क्या पढ़ाया आपको? हमने पढ़ाया reproduction is not a defining character, okay, but it is a character। और फिर हमने पढ़ाया metabolism is also a living character। फिर हमने पढ़ाया सेल इज द बेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हमने पढ़ाया लाइफ ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर लेवल, स्पेशली मैक्रोमोलिकुलर लेवल। फिर हमने पढ़ाया एनर्जी चाहिए। फिर हमने पढ़ाया व्हाई सेलुलर रेस्पिरेशन इज कैटाबोलिक, व्हाई फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक, व्हाई फोटोसिंथेसिस इज डन बाय induced by light and it is done by green plants only in daytime, and respiration is thermodynamically favorable and spontaneous, and it is done by all the plants and animals and microbes continuously। तो आप एक लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, ओके, आज का क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू आर रेडी लास्ट क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए? Yes, तो आप लोग मुझे आज का क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन मुझे बताओ कि नेक्स्ट क्लास में जब भी क्लास होगा तो हम लोग सेलुलर लेवल में आ जाएंगे, ठीक है? व्हाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे मैं आपको बताया था, आप भगवान हो, भगवान का अंश विशेष हो, बट आप भगवान नहीं हो, ठीक है? ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? हेलो, yes sir। हाँ, वेरी गुड। तो उसके बाद ये जो पॉइंट्स मैंने बताऊंगा वो आप देना। Rate of respiration is higher or rate of photosynthesis is higher? Rate of respiration is higher or rate of photosynthesis is higher? Rate of respiration. Respiration। No, oxygen content in the atmosphere क्या है? Constant है कि नहीं? Yes। Despite the respiration by all the plants, animals, microbes, aerobic respiration जितने भी करने से भी ऑक्सीजन का कंटेंट कांस्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट मोर और लेस कांस्टेंट है। उसका मतलब है ग्रॉस लेवल में दोनों बराबर है। ज्यादा टाइम रेस्पिरेशन होता है, वो भी करेक्ट है आपका, बट रेट, फ्लॉक्स रेट, वो किसका ज्यादा होगा? ओनली डे टाइम में ओनली ग्रीन प्लांट्स इतना फोटोसिंथेसिस करते हैं
कि वो खुद जो रेस्पिरेशन करते हैं उसको कंपेंसेट करता है, और एंटर वर्ल्ड का हेटेरोट्रोप्स जो बताया था, लक्ष्मण ने पूछा था मुझे, हेटेरोट्रोप्स लिविंग का मतलब ऑटोट्रोफस हेटेरोट्रोप्स होता है या प्लांट्स एनिमल्स में, सबका रेस्पिरेशन कंटिन्यूअसली जो होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। इसलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर 10x होगा तो रेस्पिरेशन x होगा। रेट बोल रहा हूँ, फ्लॉक्स नहीं। समझ में आया? Okay, No. sir. So that was the concept, and I hope you people have enjoyed, and next class will be further interesting. Okay. ठीक है, यहीं पर रखते हैं। Thank you, sir. Okay, bye. Bye all.